بی لی من عن الا علا فی. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. بی کا مطلب تھا ساتھ، لی جی واسطے کے لیے، جی من سے، جی ان بارے میں، الا جی کی طرف تک، جی علا پر، اوپر، جی فی میں اندر. ماشاء اللہ بہت خوب، آپ کو سب یاد ہے. جی ابراہیم آپ کو یاد ہے کل جو ہم نے پڑھا تھا؟ ٹھیک ہے. حبیبہ آپ نیو اسٹوڈنٹ ہے چونکہ. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے حبیبہ آپ من کے ساتھ گردان کروائیں گی ذرا ضمائر متصلہ لگا کے ساتھ. مذکر. جی مذکر مؤنث دونوں باری باری. جی جی. من ہو، ہوں من ہما، من ہوں ہوں ہم، جی من کا، من جی کما، من کم، منی، منا. اور مونس کی ہے من ہا، من ہما، من ہننا، من کی، من کما، من کننا، اور منی، منا. بہت خوب. ترجمہ بھی کر سکتی ہیں آپ. جی جی. من ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ من ہو اس ایک میں، اس ایک سے. اس ایک سے. جی ٹھیک ہے بالکل جی صحیح ہے. اس ایک سے، ان دو سے، ان سب سے. آپ ایک سے، آپ دو سے، آپ سب سے. میں ایک سے، ہم سب سے. ٹھیک اور ہے جی بہت اسی طرح ٹھیک مذکر ہے میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مونس. صحیح. اوکے جی. ابراہیم آپ ان کے ساتھ گردان کروا سکتے ہیں یہی. جی جی. عنہ، عنہما، عنہم، عنک، عنکم، عنی، عنا، عنہا، عنہن، جی عنکی، عنکن، عنی اور عنا. اس ایک سے، اس ایک کے اوپر یہ سے مذکر، نہیں اس اوپر تو اس کے معنی نہیں ہوتے. اس ایک کے بارے میں یا اس ایک اس سے. کے، اس ایک کے بارے میں، ایک سے، ان سب سے، آپ جی سے، ہم، آپ ٹھیک ہے سب سے. ٹھیک ہے ابراہیم فائن. جی عزا آپ آگے چلیے. آپ تھیں کل کے والے لیسن میں؟ جی فرا آپ کائنڈلی مائکرو فون میوٹ کر دیں اپنا. جی انبر آپ سنائیں گی آگے اس کے بعد. سر میں نے کل چلیں کا لیکچر نہیں لیا، میں کل نہیں تھی کلاس میں، جی میں ٹھیک آج ہے. دیکھ کے پھر سنا. نکاش آپ کو یاد ہے کل جو ہم نے پڑھا تھا؟ نہیں سر مجھے نہیں یاد، وہ میرا نیٹ ایشو کر گیا تھا کل، تو اچھا. کلاس اچھے سے عبدالرحمن اصغر، عبدالرحمن آپ کو یاد ہے؟ جی سر. جی اگر بی کے ساتھ ہم نے گردان کرنی ہو کیسے کریں گے؟ بی کا مطلب کیا ہے؟ کے ساتھ سے. جی ساتھ ساتھ بی ساتھ ہے. جی بی کے ساتھ اگر گردان کریں ضمائر متصلہ لگائیں. سر اس میں جو پہلے والا تھا بہو. نہیں بی کو بی ہی رکھیں گے اور ہو کو کیا کر دیں گے؟ ہی کر دیں گے. اوکے. بہی. ہی. جی. بہی، بہم، بکا، بکم، بھی، بنا. بننا نہیں ہوگا، نون ایک مرتبہ ہی آئے گا. وہ تو من اور ان میں نون ہے تو 2 مرتبہ آتا ہے نا. بنا واضح بنا. بی نون زبر الف نا بنا. بی جی سر. اور بنا. ٹھیک ہے جی. مؤنث کے ساتھ بھی کریں. مؤنث کے تحت بہما. نہیں ہما نہیں آتا پہلے. مؤنث کی پہلی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اس ایک مؤنث کے ساتھ کہنا ہو آپ نے کیا کہیں گے؟ ہما تو 2 ہوتے ہیں نا. ہما تو وہ 2 ہوتے ہیں. اس ایک بہا، مؤنث کا بہا. جی بہا بہما، بہم، بہنا. نہیں بہن. جی بکی، جی بکن، بکننا، ٹھیک ہے بلی، بنا. ٹھیک ہے. ترجمہ بھی کر دیں. مؤنث والے کا ترجمہ کر دیں. جو سب سے پہلا تھا بہا، اس ایک کے لیے، اس ایک کے ساتھ. کے لیے ایک ساتھ. ٹھیک ہے جی. بہن، ان سب کے ساتھ. ٹھیک ہے عبد الرحمن. جی مبارکہ آپ اس کے بعد لی کے ساتھ گردان کریں. آپ لی کا مطلب کیا ہے؟ لی واسطے، یہاں کے لیے. ٹھیک ہے بہت خوب. لی کے ساتھ گردان کریں گے تو کیا ہوگا؟ لی ہی رہے گا یا کوئی تبدیلی آئے گی؟ لی ہو، لی ہی.
नहीं, लिहू नहीं होता। लिही, सॉरी। हाँ देखिए, बिही के पैटर्न पर लिही होना चाहिए, लेकिन जी यहाँ पर उलट होगा मामला। यहाँ पर हम हु हुमा हुम को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ली के ऊपर क्या कर देंगे, जबर डाल देंगे, ली को ला कर देंगे। क्या लिही, बनेगा? नहीं, लिही, ला, लहू। लाहू। हाँ देखिए, इसका हल ये है, इसका हल ये कि आप एक मिसाल साथ में रखें। अब लहू जो है, उसकी सबसे आसान मिसाल क्या है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास की आखिरी आयत में आता है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और बिही को अगर आपने याद रखना है तो बिका, आऊज़ु बिका के साथ याद रखें, जी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका। लहू के साथ गर्दान करें, लाहू, ला को लाहुम, लंबा नहीं करना, ला को लंबा नहीं करना, लहू। लाहू, लाहुम, जी, लका, लकुम, नहीं अभी आप लाकुम कह रही हैं, लाकुम नहीं है, लकुम। लकुम, हाँ, लकी, नहीं, लकुन्ना। आपने मिक्स अप कर दिया, दोबारा कीजिए। लहू, लहुम, लका, लकुम। आगे चलिए, इसके लिए क्या होगा? मेरे लिए क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ मेरे लिए, तो क्या ली, कहूंगा? ली, ली, हमारे लिए। लुन्ना, नहीं नहीं नहीं, लाम जबर लाना, ला, नून सॉरी, जबर ना, लाना। लना। ठीक है, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना, ये सुना आपने कभी? अल्लाहुम्मा अग़फिर लना, जी जी जी, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली भी आता है, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना भी आता है दुआओं के अंदर। हाँ जी, व इन लम तग़फिर लना व तरहमना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना, इसमें लना आता है, ये वही लना है। ठीक है, आप मुअन्नस के साथ कीजिए। लहा, ठीक है, लहुम, नहीं, हुम की बजाय मुअन्नस के लिए क्या होता है? हुम तो लहुन्ना, मुज़क्कर के, लहुन्ना, लहुन्ना। बहुत जी, ठीक है। लकी, नहीं, की को लंबा नहीं करना, लकी, 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 लकुन्ना, लकी। हाँ, जी, ली, लना। लना। ठीक है, तर्जमा कर दीजिए। लहू का क्या मतलब होगा? लहू लहू उस एक मुजक्कर के लिए, एक मुज़क्कर के लिए, और लहा उस एक मोनस के लिए। उसे एक मुअन्नस के लिए। अच्छा, ठीक है जी। इससे मुझे एक दुआ भी याद आ गई, जो मगफरत के लिए पढ़नी चाहिए किसी फौत हो जाने वाले के लिए। और उसमें आपने आमतौर पे हम नमाज जनाजा की दुआ जो पढ़ते हैं, वो है अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। यही याद है ना आप में से अक्सर को, खास तौर पे मर्द हजरात को, जो जाके जनाजे की अक्सर नमाज आपको पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन इसके अलावा एक और दुआ है जो बहुत खूबसूरत है, और मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है, कि जो मैयत है उसके लिए, उसकी मकसद के लिए बहुत अच्छी दुआ है। तो उसके लिए अभी वक्त मिलता है तो हम उसको इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे, आप मुझे याद कराइएगा। अब आगे चलते हैं जी। तो बी ली मिन अन, 4 हरूफ जर हमने पढ़ लिए थे, 3 बाकी हैं। इला, अला, फी। आप में से जिनको याद नहीं है, वो इसको इस पैटर्न पे भी आप याद कर सकते हैं। बी ली मिन अन, इला, अला, फी। पढ़िए, बी ली, बी ली बीली मिन अन, मिन अन इला, अला, फी। इला इला अला फी। अला अला फी। जी, अब इसमें हर एक की मिसाल आप में से अक्सर को आई एम श्योर कि याद हो चुका है, लेकिन जिनको नहीं याद, इस तक नकाश आपको अगर याद नहीं हुआ अब तक, तो बी की मिसाल आपको रिपीट कर याद दें होनी चाहिए। सर, बी की रिपीट कर मिसाल दें। दे सकते हैं कोई आप? बी की मिसाल दे सकते हैं कोई? नकाश, आप म्यूट पे हैं। नहीं मैं दो। जी नहीं सर, मुझे नहीं आती। जी, आप कोई और बता दे स्टूडेंट। गुलाम फातिमा, आप बताइए, बहुत सर ये आसान है। बी, रिपीट कर दें। बिस्मिल्लाह, औज़ औज़ आऊज़ु बिका बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, दोनों में बी आ रहा है ना? बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ, और आऊज़ु बिल्लाह मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह के साथ बी आ गया। तो आपने ये मिसाल याद रखनी है, ठीक है? आप में से हर एक को मिसाल, बी की मिसाल क्या है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप कह दें। जी, ली की मिसाल क्या है? ये भी बहुत आसान है। मैं बता दूं, सूरह इसमें बी में लश, जी बताइए। लिशम्सी, आसान, लिलकमर, जी बहुत आसान। और आसान मिसाल, लिलकाफिरीना, सूरह फातिहा से लिलकाफिरीना। मिसाल, सूरह फातिहा से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, ये कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। निकाले थे ना, तो आपने कहा था इसको ना, अच्छा तो फिर अच्छा ये मुझे अच्छा, नजर आप आया। इसलिए बता रही, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत खूब, हाँ बहुत हाँ, खूब। लेकिन अभी हर एक को मैं मिसाल एक्चुअली सेम याद कराना चाह रहा हूँ। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह से याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सर कहते हैं अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छींक छींक आने पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें और शुक्र
लिल्लाही अल्लाह के लिए, वास्ते अल्लाह के, या अल्लाह के लिए। तो ली की मिसाल क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। मिन की मिसाल क्या है? मिनश्शैतान मिनश्शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। मिन आ गया। अन की मिसाल क्या है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हुआ अल्लाह उससे, उस एक मुज़क्कर से। रज़ियल्लाहु अन्हा, राजी हुआ अल्लाह उस एक मुअन्नस से। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेसन नंबर 7 हमारा जारी है और ये 7 हुरूफ़ जर हैं जो हम पढ़ रहे हैं। बी ली मिन अन इला अला फी, और आपने देखा कि बी 7 उसका मतलब है बिस्मिल्लाह, ली की मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह, मिन की मिसाल मिनश शैतानिर रजीम, अन की मिसाल रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये मिसाल असल में जिन लोगों को याद नहीं हो रहा उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अब इला जो है उसकी हम मशक करेंगे, और इला के लिए एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं आमतौर पे, हम किसी के फौत हो जाने पे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन एक्चुअली में कब कहना चाहिए? कोई भी मुसीबत आ जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लाइट जाने पे भी आप कह सकते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ हमने अक्सर इसको मखसूस कर दिया, किसी को फौत होने पे ही इन्ना लिल्लाह पढ़ी जाती जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मतलब क्या है? हम अल्लाह के लिए हैं और हम अल्लाह की तरफ ही लौटने वाले हैं, और उसी की तरफ हम लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इला, अला और फी, इन तीनों में एक कॉमन बात है, जो कोई बता सकता है क्या इसमें आपको इन तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? दैट्स व्हाई वी हैव ग्रुप्ड देम टुगेदर। इला, अला, फी। देखने में इसमें या क्या कॉमन है? या छोटी कॉमन है या किसमें? छोटी या कॉमन है कहाँ पे? आखिर में। इन तीनों के आखिर में या है, नजर आ रही है? मानते हैं जी आप? या है तीनों के आखिर में। ऐसे तमाम अल्फाज जिनके आखिर में या हो, जब हम उसको मिलाते हैं किसी ज़मीर मुत्तसिल के साथ तो क्या शक्ल बनती है? आइए ये वाली शक्ल। अब हु हुमा हुम के साथ हमने पढ़ना है, एक तो हु हुमा हुम नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा क्या हो जाएंगे? ही हिमा हिम, क्योंकि या है साथ। और या के ऊपर जज़म आ जाएगी। पहले इला में या पढ़ने में नहीं आ रही, लिखने में आ रही थी। इला और अला में भी जो है वो लिखने में आ रही है, फी में पढ़ने में आती है, फी, फा जेर या फी। लेकिन अब यहाँ पर ये इस पे ये लीन बन जाएगा। मद और लीन आप समझते हैं, अगर नहीं तो बस इस तरह से इलाही, इसे इलाहू नहीं कह सकते हम, वरना तो ये होना चाहिए था कि इला के आखिर में हु लगाएं तो क्या बने? इलाहू, इलाहुमा, इलाहुम। लेकिन ऐसे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इलाही। और इला का मतलब क्या है? तरफ, टुवर्ड्स। मेरे साथ पढ़िए, इलाही, इलैहि इलाहिम, इलैहिम इलाइका, इलैका इलाइकुम, इलैकुम इलैया, इलैया इलैना। इलैना नहीं, अलैना नहीं, क्या है? इलैना। हाँ, ये भी हमारी बड़ी एक कॉमन मिस्टेक है उर्दू स्टाइल में। हम इला को अला पढ़ देते हैं और अला को सही पढ़ लेते हैं, लेकिन इला को वी टेंड टू से, नॉट एवरीवन बट सम ऑफ अस और मोस्ट ऑफ अस, वी टेंड टू से अला, तेजी में अला, इला, इला कहना, इला। अलिफ के नीचे क्या है? हमजा जेर ई, तो इला पढ़ेंगे। अच्छा, ये इलैया जो है वो कैसे बना है? इसमें दो या आ रहे हैं, शद आ रही है ना। एक या किसका है? इला का अपना, और एक या कौन सा है? या मुतकल्लिम, यानी मेरा मैं, मेरा, मेरा, इसलिए जो है वो इलैया बन गया। इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही आपको? इलैया कैसे बना नो जी? सर पढ़िए जी। इलैही, इलैहि इलैहिम, इलैहिम इलैका, इलैका इलैकुम, अलैकुम नहीं अलैकुम नहीं, इलैकुम। इलैकुम हाँ, इलैकुम, इलैकुम इलैया, इलैया इलैना इलैना जी, इलैहा, इलैहा इलैहिन्ना, इलैहिन नहीं अलैहा नहीं, इलैहा, इलैहा इलैहिन्ना। इलैहिन्ना अच्छा, इसमें आप एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए, आपने ई को लंबा नहीं करना है, खड़ी ज़ेर नहीं है। आपने इलाई नहीं कहना, इलाई नहीं कहना, इलाई क्या कहना है? इलाई। इलै हाँ, बहुत मुख्तसर सा ई, हमजा से ई। हाँ, इलाई, इलाइहा, इलैहा इलाइहिन्ना, इलैहिन्ना इलाइकी, इलैहिन्ना इलैकी इलाइकुन्ना, इलैकुन्ना इलैया, इलैया इलैना,
इलैना पढ़िए इलैहि इलैहि इलैहिम 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 इलैका इलैका इलैकुम इलैकुम इलैया इलैकुम इलैया इलैयाकुम इलैना 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 उस एक मुज़क्कर की तरफ उस उस एक एक मुज़क्कर की तरफ उन सब मुज़क्कर की की तरफ तरफ उन सब की तरफ आप एक की तरफ आप एक की तरफ आप सब की तरफ आप सब आप सब की तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ हमारी तरफ हमारी हमारी तरफ तरफ इलैहा इलैहा इलैहिन्ना इलैहिन्ना इलैकी इलैकी इलैकुन्ना इलैकुन्ना इलैया इलैया इलैना इलैना उस एक मुअन्नस की तरफ एक मुअन्नस की तरफ उन सब की तरफ उन सब की तरफ आप एक की तरफ आप एक की तरफ आप सब की तरफ आप सब की तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ हमारी तरफ हमारी तरफ क्या मतलब है इलाका का मतलब क्या है तरफ तरफ हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बेशक हम अल्लाह के लिए हैं लिल्लाहि लिया गया अल्लाह के लिए है व इन्ना और बेशक हम इलैहि उसकी तरफ यानी अल्लाह की तरफ राजिऊन लौटने वाले जी अभी अब याद हो गया मैं इशारा करूँ आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत है नहीं पढ़ना एक मतलब पढ़ लेते इलैहि इलैहि इलैहिम इलैहिम इलैका इलैका इलैकुम इलैकुम इलैया इलैया इलैना इलैना इलैहा इलैना इलैहिन्ना इलैहिन्ना इलैकी इलैकी इलैकुन्ना इलैकुन्ना इलैया इलैया इलैना इलैना जी मैं इशारा करता हूँ पढ़िए इलैहि इलैहिम इलैका इलैकुम इलैया इलैना इलैहा इलैहिन्ना इलैकी 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 दोबारा इलैकी इलैकी इलैकुन्ना इलैया इलैना इलैही जी तर्जमा कीजिए इलैही उस एक के लिए एक तरफ के लिए नहीं, उस एक की तरफ इलैहिम उन सब की तरफ इलैका आपकी तरफ इलैकुम आप सब की तरफ इलैया मेरी तरफ इलैना हमारी तरफ इलैहा एक की तरफ इलैहिन्ना उन सब की तरफ इलैकी आपकी तरफ इलैकुन्ना आप सब की तरफ इलैया मेरी तरफ इलैना हमारी तरफ हम सब की तरफ या हमारी तरफ जी इलैकुम आप सब की तरफ इलैना हमारी तरफ नकाश इब्राहिम आप जरा म्यूट कर दें खामोश हो जाए नकाश आपने भी पार्टिसिपेट करना आपकी आवाज आनी चाहिए जी इलैया मेरी तरफ जी नकाश आपकी आवाज नहीं आई अच्छा इलैहिम हिम उन सब नकाश ऐसा की करें तरफ नकाश ऐसा करें आप इशारे को देखिए इलैहिम उन सब इलैकुम आपकी तरफ सबकी तरफ कितने आप कितने वजाहत करें आप सब की तरफ इलैना मेरी तरफ हमारी तरफ हमारी तरफ इलैना इलैका आप एक की तरफ आपकी तरफ इलैहि उस एक की तरफ एक मुज़क्कर की तरफ इलैहा उस एक मुअन्नस की तरफ इलैकी आप एक मुअन्नस की तरफ इलैना हमारी तरफ इलैकुन्ना आप सर मुअन्नस की तरफ मुअन्नस की तरफ और इलैहिन्ना
उन सब मोनस की तरफ, उन सब मोनस, इलैकुम आप सबकी तरफ, आप सब की मुज़क्कर, ठीक है जी। इला का मतलब क्या सीखा हमने, इला के क्या मानी है, तरफ इला का क्या मतलब है, तरफ, और दी का क्या मतलब है, दी वास्ते के लिए, वास्ते के लिए, और बी शुरू साथ करता हूँ साथ, बी साथ, ठीक है जी। अब इला के बाद क्या है, अला, क्या है ये लफ्ज, अला, आइन के ऊपर, आइन जबर, आइन के ऊपर जबर है तो आप पढ़ेंगे अला। अब अला के आखिर में हु लगाएंगे तो अला हु नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अलई ही, अलई ही। जिस तरह अब आपने इलई ही नहीं कहना, अब आपने अलई ही कहना। देखिए अलई ही और इलई ही, इनकी आवाज मैच नहीं होनी चाहिए। ये काइंडली माइक्रोफोन म्यूट कर दें। सर स्क्रीन नहीं शो इसके हो रही, इसके शायद एंड से मुझे नहीं हो बात रही, या शेयर ही नहीं है आपकी तरफ। नहीं, माइक्रोफोन किसी के वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, किसी और आवाज आ रही है जी। पढ़िए अलई ही, एक्सक्यूज मी अलैहि जी अब्दुल रहमान। सर, स्क्रीन नहीं शेयर, शायद मेरी तरफ नहीं शो हो रही या नहीं आपकी जी, तरफ मैंने से। खुद स्क्रीन ऑफ की है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देख के पढ़ें। ओके जी जी, स्लाइड को देख के ना पढ़े। अलैहि, अलैहि अलैहिम, अलैहिम अलैका, अलैका अलैकुम, अलैकुम अलैया, अलैया अलैना। अलैना। ये जो अला है ना, इसकी सीगों का इस्तेमाल ज्यादा है। अब देखिए, अब अलैहिम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। इसी तरह अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये अला का इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और अस्सलामु अलैकुम, इसका इस्तेमाल कितना ज्यादा, और इसी से आप इसको याद भी रखेंगे। अला, अला का मतलब क्या है, ऊपर जी, उस एक के ऊपर, उस एक के उस एक के ऊपर, सबके ऊपर, हम उस सबके ऊपर, आप एक के ऊपर, आप एक के ऊपर, आप सबके ऊपर, आप आप सबके सबके ऊपर, के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे ऊपर, अलैहा, अलैहा अलैहिन, अलैहिन अलैकी, अलैकी अलैकुन्न, अलैकुन अलैया, अलैया अलैना। अलैना। उस एक मुअन्नस के ऊपर, तो एक बोनस के ऊपर उन सब के ऊपर, उन सबके ऊपर, आप एक के ऊपर, आप आप एक एक के के ऊपर, ऊपर, आप सबके ऊपर, आप आप सबके सबके ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे मेरे ऊपर, ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे हमारे ऊपर, अलैहि, अलैहि अलैहिम, अलैहिम अलैका, अलैका अलैकुम, अलैकुम अलैया, अलैया अलैना, अलैना अलैहा, अलैहा अलैहिन्ना, अलैहिन अलैकी, अलैकी अलैकुन्ना, अलैकुन अलैया, अलैया अलैना। अलैना जी मैं इशारा करता हूँ, पढ़िए। अलैहि हाँ नहीं, दाएं हाथ से मुज़क्कर शुरू करें। अलैहि अलैहि अलैहिम अलैका अलैका अलैका, अलैकुम अलैया, अलैया अलैना अलैहा अलैहिन्ना अलैकी अलैकुन्ना अलैया अलैना। तर्जमा कीजिए, अलैहि, उस एक के लिए एक मुज़क्कर मर्द की तरफ, तरफ तरफ नहीं, ऊपर ऊपर अस्सलामु अलैकुम से याद रखें, सलामती हो आप सब पर जी। अलैहि, उस एक के ऊपर अलैहिम, उन सब सबके ऊपर अलैका, आपके आपके ऊपर ऊपर, अलैकुम, आप सबके सबके ऊपर, अलैया, मेरे ऊपर अलैना, हमारे ऊपर अलैहा, उस उस एक के एक ऊपर बोनस के ऊपर, अलैहिन्ना, उन उन सबके सब के ऊपर ऊपर, अलैकी, आपके आप एक ऊपर के ऊपर, अलैकुन्ना, आप सबके ऊपर अलैया, मेरे मेरे ऊपर, ऊपर अलैना। हमारे हमारे ऊपर, ऊपर उस एक के ऊपर अलैहा, अलैहि नहीं, मुज़क्कर, उस एक मुज़क्कर के ऊपर, अलैहि, उन सब के ऊपर, अलैहिम अलैहुम, आप एक के ऊपर, अलैका अलई का, का, आप सबके ऊपर, अलैकुम मेरे ऊपर, अलैया, अलैया हमारे ऊपर, अलैना, अलैना। ठीक है जी। अलैका, आप एक के आपके ऊपर, ऊपर अलैहा,
उस एक के ऊपर मोनस उस उस एक एक मोनस मोनस के के ऊपर, ऊपर, अलैहिम, उन सब आप के सब ऊपर, उन उन सब के सब के ऊपर, मुजक्कर के ऊपर, अलैना, हमारे हमारे उन ऊपर, सब के ऊपर, हमारे अलैकी, उस आप एक एक मोनस के ऊपर, आप आप एक एक मोनस मोनस के के एक ऊपर, मोनस के ऊपर, काफ मुखातिब के काफ को पहचाने उसने कहना, बल्कि मुखातिब को फर्क, अलैकी आप एक मुअन्नस के ऊपर, अलैहिया, मेरे मेरे ऊपर, ऊपर, हाँ आपने किसको पहचाना, आपने या को पहचाना, इसको या मुतकल्लिम कहते हैं। एक बात हो रही है, वाहिद मुतकल्लिम, अलैया मेरे ऊपर, अलैहिन्ना उन सब के सब ऊपर, औरत के ऊपर, सब उन मोनस सब मोनस के ऊपर, मोनस के ऊपर, सब मुअन्नस के ऊपर, अलैकुन्ना, अलैकुन्ना आप सब आप मोनस सब के ऊपर, मोनस आप आप सब सब मोनस मुअन्नस के ऊपर, क्योंकि काफ को देखा आपने मुखातिब, अलैकुम, आप सब मुजक्कर के आप ऊपर, सब आप सब के मोनस ऊपर, अलैकुम, मुजक्कर के ऊपर, अलैकुम बिसुन्नती, क्या फरमाया अल्लाह के नबी सुनने, अलैकुम बिसुन्नती, आप सबके ऊपर मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत को पकड़ो लाजिम, मेरी सुन्नत पे अमल करो। इसी तरह अस्सलाम सर ये एक बात है, जी फरमाइए। सर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो हम एक बंदे को भी अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। बिल्कुल, मैं यही बात करने लगा था, आपने मेरे मुंह की बात, गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि अस्सलामु अलैका कहना चाहिए। एक बंदा, एक शख्स खड़ा है सामने, मुज़क्कर आपके अस्सलामु अलैका, मुअन्नस है आपकी अम्मी या बहन आपके अस्सलामु अलैकी, अगर दो खड़े हैं अस्सलामु अलैकुमा और ज्यादा है तो आप कहें अस्सलामु अलैकुम। सूली तौर पे ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम एक वाहिद शख्स को, चाहे वो मुअन्नस है चाहे मुज़क्कर है, हम अस्सलामु अलैकुम क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये कि हम सिर्फ उसको सलाम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम दाएं बाएं उसके जो ग्रामी कातिबीन है उनको भी सलाम कर रहे हैं। तो अब आप इसकी भी नियत किया करें, अभी आपने सोचा नहीं ऐसे, हम ज़ाहिर अनकॉन्शियसली अस्सलामु अलैकुम कह रहे होते हैं, जबकि हदीस मुबारक में आपने देखा होगा सहाबा है, आपने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या कुछ तरह की बात की, तो वहां पर अलैका का सीगा भी आपको मिलता है, या नमाज में आपको मिलता है। तो इस तरह से जो है वो अलैकुम इसलिए कहा जाता है, वरना, और ये सही। आसानी भी है इसमें हमारे लिए, नॉन अरब के लिए, वरना जिनको कुरानी अरबी नहीं आती है, अरबी नहीं आती, वो फिर उनके लिए जरा मुश्किल हो जाता है कि सामने बंदा देख के वो सीगा उन्हें चूज करना पड़ता है। अब आसानी है सभी को अस्सलाम वालेकुम कहना। ठीक है जी, अला का मतलब क्या है? अला का क्या मतलब है? ऊपर। और इला का मतलब क्या है? की तरफ, तरफ इला है और अला ऊपर है, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम से अगर आप याद रखेंगे तो अला ऊपर के मानी देगा, और आप इला को दूसरी एग्जांपल से याद रखेंगे। अब हमारे पास लास्ट क्या रह गया? फी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है जी, फी, फी ही, फीहिम, फी का मतलब क्या है? फी का मतलब पहले सबको याद होना चाहिए क्या है? में, इन जिससे कहते हैं, इन या इनसाइड, फी। ठीक है जी, फी ही, फीहिम, फीका, फीकुम, फीया, फीना। इसमें फिया जो है वो अजीब लगता है, सुना नहीं गया शायद कभी, लेकिन दो या इकट्ठे हो गए, जैसे अलैया और इलैया है, इसी तरह फिया, फिया मेरे में जी, उस एक में, उन सब में, आप एक में, आप सब में, मेरे में, हमारे, फीहा, फीहिन्ना, फीकी, फीकुन्ना, फीया, फीना। आपके बैकग्राउंड में किसी बच्चे की आवाज आ रही है, आंटी म्यूट करते हैं। बच्चा भी शायद कुरानी अरबी पढ़ना चाह रहा है, ही इज इंटरेस्टेड। ओके जी, अब देखिए इसमें फीहा जो है, फीहा उस एक मुअन्नस में, पढ़िए, उस एक मुअन्नस में, उन सब में, आप एक में, मेरे में, हमारे, हमारे। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या है? फीहा की मैं बात कर रहा था कि ये बहुत फ्रीक्वेंट है कुरान में, कि जन्नत और जहन्नुम का जो तस्करा आता है, हुम फीहा खालिदून, हमने पहले अपने लेसन में भी मिसाल देखी, फीहा उस एक में, तो जन्नत और जहन्नुम के तस्करे में अक्सर ये आ रहा होता है, खालिदीन फीहा या हुम फीहा खालिदून, उस एक में वो हमेशा रहेंगे या रहने वाले हैं जी। फिर पढ़ते हैं फीही, फीहिम, फीका, फीकुम, फीया, फीना, फीहा, फीहिन्ना, फीकी,
फीकी फीकुन्न, फीकुन्ना फिया, फिया फीना, फीना पर और फीही, फीही फीहिम, फीहिम फीका, फीका फीकुम, फीकुम फिया, फिया फीना, फीना फीहा, फीहा फीहिन्न, फीहिन्ना फीकी, फीकी फीका फीकुन्न, फीकुन्ना फिया, फिया फीना। फीना ये याद हो गया? ठीक है, मैं इशारा करता हूँ, पढ़िए। फीही फीही फीहिम फीहुम हम नहीं, क्या होगा? हिम। फीहिम इदा फीहिम वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में या आती है, चाहे वो ये तीन है या कोई और है, जब उनके साथ हु हमा हम लगते हैं तो क्या हो जाते हैं? ही हिमा हिम हो जाते हैं, हमेशा ऐसे। जी पढ़िए फिर शुरू से। फीही फीहिम फीका फीका फीकुम फीकुम फिया या फीना आई एम सॉरी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा नॉइस कंट्रोल करने के लिए। जी फीहेधा फीहा किसके एंड से आवाजें पीछे से बहुत ज्यादा आ रही, काइंडली म्यूट कर दें या किसी साइलेंट रूम में चले जाएं आप। जी फिर मुअन्नस की शुरू करें। फीहा फीहिन्ना फीकी फीकुन्ना फिया फीना ये तर्जमा कीजिए। फी ही, उस एक के लिए मुजक्कर के लिए के में एक मुजक्कर में। फी हिम, उन सब में उन सब मुजक्कर के लिए फी का, आप आप में एक मुजक्कर के लिए फीकुम, आप आप सब सब मुजक्कर के लिए फिया, मेरे में मेरे लिए फीना, हमारे में हमारे लिए हमारे में फीहा, उस आप एक एक मुअन्नस के एक मुअन्नस के लिए उन सब में के लिए नहीं, उन सब मुअन्नस के के लिए नहीं। फी का मतलब क्या है? में। जी में दिमाग को हाजिर रखना होगा। फी की आप में आप आप में मुअन्नस में, फी कुन्ना, आप सब मुअन्नस में फिया, मेरे में फीना, हमारे में हमारे में। ये वक्त कम रह गया, हमने कुरान के एग्जांपल्स को भी देखना है, लिहाजा इसको मैं रैंडम नहीं कर रहा। फी ही की मिसाल बहुत आसान है। आप कुरान करीम की तिलावत शुरू करते हैं सूरह बकरा की। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब जिसमें नहीं है कोई शक, उस एक मुजक्कर में। अच्छा, यहाँ पर किताब तो मुअन्नस नहीं है, ये फी ही क्यों आ रहा है? फी हाँ नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है? एनीवन कोई बताना चाहेगा? किताब होती है या होता है? होती है किताब तो होती है मगर कलाम अल्लाह का है शायद, इसलिए उसमें कोई शक नहीं इसके कलाम में। मुअन्नस की अलामत क्या होती है? किताब होती है किताब होती है किताब होती है किस जुबान में? और किस जुबान मेरे में ख्याल किताब? से सर जी उर्दू जुबान। कुरान पाक एक अजीम किताब है, इस वजह से यहाँ पे मोनस का सीख बिल्कुल नहीं, अजीम के लिए तो ये मुज़क्कर होना चाहिए। हाँ वो दूसरा हाँ लगता है ना। मुअन्नस जो है वो आमतौर पे अरबी जुबान में सिर्फ वीक अरबी चीजों जुबान में होता है जी अच्छा, पहले इसका चलिए बता चलिए दे चलिए मैं आपको एक हिंट देता आप हूँ। बता मुझे दे बताइए, मुअन्नस जब हमने पढ़ा था, मुस्लिम से मुअन्नस कैसे बनाते हैं? मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन क्या किया हमने आखिर में? गोलता आता है इस वजह से गोलता लगाई, ठीक है। तो किताब उनके आखिर में गोलता है? नहीं नहीं है। इसका मतलब है किताब अरबी जुबान में मुज़क्कर है, अरबी जुबान में किताब होता है। आप यूं कह सकते हैं। बहरहाल इट साउंड्स वियर्ड। बहरहाल अरबी में किताब मुअन्नस नहीं है, किताब मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर के लिए फिर कौन सी ज़मीर आएगी? मुज़क्कर की आएगी। ये अब लेकिन हम उर्दू में तर्जमा करते हैं तो ऑफ कोर्स अपनी जुबान के मुताबिक इसको तर्जमा करेंगे। हाँ, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें गोलता नहीं है फिर भी वो मुअन्नस होती है, जैसे हमने कहा अर्दुन समाउन। तो ये एक डिटेल्ड टॉपिक है मुअन्नस मुज़क्कर का। इसमें इंशाल्लाह हम लेवल 1 के लेसन मुकम्मल करने के बाद इस पे जो हमारे एप्लीकेशंस करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा लेसन होंगे, उसमें इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। फिर लैल बहरहाल भी ये इस वैसे वजह ही से वो जी जो लैल है वो तो मोनस है ना। हाँ, लैल और नहार, ये लैल मैंने बताया जो कायनात की जो निशानियां हैं उनको अक्सर जो है वो उनको मुअन्नस शुमार किया जाता है, अगरचे उनमें गोलता नहीं है। मैंने पहले बताया था जब हम पढ़ रहे थे वो शजर और वो आपका अनहार और अनआम, याद है हमने ये पढ़ा था तब। अदरवाइज जनरल रूल वही है कि मुअन्नस की अलामत होना जरूरी है। एक अलामत आपने सीखी है वो गोलता, उसके अलावा एक दो अलामतें और भी होती हैं।
تو اگر علامت نہیں پائی جا رہی تو ہم اس کو مذکر سمجھیں گے، اور مذکر کے لیے پھر مذکر کا ہی صیغہ آئے گا، مذکر کی ہی ضمیر استعمال ہوگی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ویسے میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا جسٹ ٹو یو نو. اوکے جی، اب ہم اسکرین شیئر کرتا ہوں اور ہم قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے سلائڈز بھی اس کی زیادہ محنت سے تیار کی گئی ہیں. یہ دیکھیے بی ہمارے پاس آ گیا سب سے پہلے، اور قرآن کریم میں اس کی تکرار 5-10 ٹائمز ہے، اور یہ ایک حرف جر ہے، ایک پریپوزیشن ہے، اور ترجمہ اس کا ساتھ کیا جاتا ہے، اور سم ٹائمز با محاورہ میں سے بھی کر دیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی مثال آپ اس سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اس کے علاوہ مزید مثالیں آپ کے سامنے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے تخلیق کیا، اس نے السماوات آسمان، اور الارض زمین، آسمانوں اور زمین کو، بالحق کی ساتھ حق کے، حق کے ساتھ. تو بالحق کی آپ کو قرآن کریم میں بہت زیادہ مرتبہ ملے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، سورۃ العادیات کی آیت ہے. بے شک ربہم کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ان کا رب، بہم ساتھ ان کے، بہم بہی اور بہم. جی حبیبہ، حبیبہ پوچھیے گا. نہیں سر، وہ غلطی سے ہوا. جی ٹھیک ہے، آپ یو کین لو. ان ربہ کان بہی بصیرا، اس میں دیکھیے کہاں آ رہا ہے بی، یہ بہی آ رہا ہے، بہم اور بہی. تو ایک مثال، ان میں مثالوں کو اس طرح سے میں نے اکٹھا کیا ہے کہ ایک مثال جو ہے وہ بغیر ضمیر کے ہے. آپ دیکھیے بالحق کی، حق ایک لفظ ہے حق، اور اس کے ساتھ بی آیا تو بالحقی ہو گیا. اور دو جو مثالیں ہیں بہم اور بہی، یہ وہ مثالیں ہیں جس میں ضمیر متصل ساتھ میں، جس کی آپ نے بھی مشق بھی کر لی ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بالحقی ہے، حق کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بی ہے، اور بی حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو لفظ آتا ہے عام طور پہ اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. یہ کل میں نے آپ کو اس کی علامت بھی بتائی تھی. اور اس کے بعد ناؤن ہوتا ہے وہ ہمیشہ، یعنی یہ ایک ناؤن ہے، اسم ہے. یہ عام جملے میں دیکھ لیں، ذهبت الى المسجد بأبي وأخي، میں گیا مسجد کی طرف، الا بھی آ گیا اس میں، بی ابی اپنے ابو کے ساتھ، و اخی اور اپنے بھائی کے ساتھ. ابن اور اخن بھی آپ نے پڑھ لیا، تو یہ بھی اس میں آ گیا. مزید اب لی کی مثالیں دیکھ لیں آپ. لی جو ہے اس کا مطلب ہے لیے یا واسطے، اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی اس کی مثال ہے مشہور. اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آگے دیکھیے فإن اللہ عدو للکافرین، ابھی میں خیال ہے فرح آپ بتا رہی تھی ایگزامپلس. للکافرین کی ایگزامپل آ گئی. اب دیکھیے فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ دشمن ہے، عدو دشمن کو کہتے ہیں، للکافرین کافروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. لہو ما فی السماوات والارض، یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ملتی جلتی مثال آ گئی. لہو اس کے لیے، لہو ہم نے پڑھا لہو ما لہم، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. فی بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے. لہم ان سب کے لیے، جنات باغات، یہ جنتیں، تجری بہتی ہیں، من بھی آ گیا سے، تحتیہا تحتی بھی آ گیا، تحت فوقا بھی آپ نے پڑھا ہے، تحتیہا اس کے نیچے، الانہار نہر کی جمع ہے، انہار اردو میں استعمال ہوتا ہے نہریں. لکم دینکم ولی دین، مشہور مثال ہے لکم، یہ لکم میں بھی اور لیا میں بھی، لی اور لکم دونوں آ رہے. لی سم ٹائمز لیا بن جاتا ہے، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ لی ہی ہے. اور دینی تھا اصل میں، دینی میرا دین، لیکن ایکچولی وہ اس کی ایک یا جو ہے غائب ہو گئی تو دین ہی رہ گیا، اس لیے اس کے نیچے زیر ہے. تم سب کے لیے دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دینی میرا دین. کس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں سر، بالکل. اچھا، اس میں ایک اور سوال پوچھوں آپ سے، اگر آپ سے. جی سر. جی ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا کہ حرف جر جو ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہ بالحق کی، بلکہ یہ سوال نہیں ہے، سوال نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں میں. یہاں دیکھیے فإن اللہ عدو للکافرین، کافرین کا مطلب کیا ہے؟ یہ جمع ہے، تسنیہ ہے یا واحد ہے؟ جمع. جمع ہے. کیسے پتہ لگا؟ آخر میں کیا ہے اس کے؟ اینا. اینا. اس کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ اینا کی جگہ اونا. للکافر، کافرونا بھی ہو سکتا ہے اور کافرینا بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہم نے دونوں پڑھے. کافر ان کی جمع کیا ہوگی؟ یا کافرون بھی ہے زیادہ کافر، اور کافرین بھی زیادہ کافر ہیں. لیکن جب حرف جر آئے گا تو ہمیشہ یہ دوسری والی شکل آئے گی، یا زیر ہوگی یا دوسری والی شکل ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں بالحقی، یہ حرف جر آیا، یہ سنگولر کے اوپر، اور حق کے نیچے کیا ہو گیا؟ زیر آ گئی. یہاں پر یہ پلورل تھا، جمع تھا، کافرون تھا اصل میں کیا تھا؟ کافرون. لیکن لی نے کیا کیا؟ اس کو کیا کر دیا؟ کافرین کر دیا. تو یہ بھی آپ ایک جسٹ آن اے سائڈ نوٹ آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس سے پریشان ہو رہے ہیں تو بھول جائیں، اس کو مت یاد رکھیں، کہ ہمارا اصل ٹاپک ہے کہ آپ
حروف जर उनका तर्जुमा याद कर लें और फौरी फौरी तर्जुमा करें। मिन का मतलब क्या है? से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसकी मशहूर मिसाल आपने याद रख ली। अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, अन्नहु ये कि वो, अल हक़्क़ु हक है, मिन से रब्बिहिम उनका रब, यानी बेशक वो हक है, ये कि वो हक है कुरान करीम उनके रब की तरफ से। माहुम मिनकुम वला मिनहुम, ये मिन, अब जमीर के साथ आप देखें इसका इस्तेमाल, मिन का मिनकुम भी आ गया और मिनहुम भी आ गया एक ही आयत के अंदर। हुम ये पहला हमारा ज़मीर मुनफसिल है, देखिए हुम अल्लाह से आएगा तो क्या होगा? ज़मीर मुनफसिल। मा नहीं हुम वो सब, मिनकुम तुम में से, तुम सब में से, वला और नहीं, मिन मिनहुम उन सब में से। ये मुनाफिकीन की बात हो रही है कि वो किसी के साथ नहीं होते, वो मफाद परस्त होते हैं। मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, तो मिन का इस्तेमाल मुअन्नस की ज़मीर के साथ भी आ गया। बस जो कोई आया किसी नेकी के साथ, यानी नेकी लेकर आया, फलहु लहू भी इसमें आ रहा है, लहू अभी आपने पढ़ा है, बस उसके लिए खैरुन बेहतर है, मिनहा उससे। ये आपको याद है पहले सबक में हमने बताया था कि फा और वा जो है ये आ जाते हैं शुरू में, जब हमने हुआ के साथ मश्क भी की थी, हुआ हम के जी साथ। जी तो ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ये फलहु में फा क्या है? नो सर। बस बस ये बस या तो के लिए इस्तेमाल होगा। इसको आप अलग कर दें तो बाकी क्या बचता है? लहू। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है कि बाज़ औक़ात जो आपने पढ़ा है उससे पहले फा वा इस तरह के प्रीफिक्सेस जो है वो लग सकते हैं, आप उनको अलग करके उसका तर्जुमा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नॉर्मल मतलब हम उसको छोड़ देते हैं। कि अन हमने पढ़ा है, अन की कुछ कुरानी मिसालें, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, सूरतुल माऊन की आयत है, अल्लज़ीना जो हुम वो सब, अन से, सलातिहिम उनकी नमाज़ें, साहून गाफिल। तो ये यहाँ पर मिन क्यों नहीं आया, अन क्यों आया? ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये अहले ज़ुबान को डिसाइड करना होता है कि कौन सी प्रीपोजिशन जो है वो यूज होगी और अन का इस्तेमाल कब होना है, ये जो कि डिसाइडेड है। जैसा कि वो आपको याद होगा हमने वो देखी थी एक, जी नकाश आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जार हरूफ जार है, जार ये जी जी क्यों बोलते हैं इसको? ये कंटिन्यूस को मतलब किसी वर्ड को नहीं नहीं, कंटिन्यू ये करता है, जारी से जार कंटिन्यूस नहीं है। पहली बात तो ये कि जारी से जार नहीं है, ये जार है, ये जर है, हरूफ जर है ना। ये जर किसे कहते हैं, ये इंशाल्लाह हम इन लेसन्स के बाद इस पे एक सेशन रखेंगे। एक स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है अरेबिक ग्रामर के अंदर। ये सिर्फ अरेबिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट है जो मैं नहीं छेड़ना चाहता। हार्डकोर अरेबिक ग्रामर इस कोर्स में मैं नहीं पढ़ा रहा, इसको आसान करके हम पढ़ रहे हैं अरबी, क्योंकि ग्रामर जो है वो हजम करना हर एक के लिए मुश्किल आसान नहीं होता। तो हो सकता है कि ओके आप में से आधे स्टूडेंट भाग जाएं ग्रामर पढ़ने के बाद। ठीक है, इसलिए आप बस अभी सिर्फ इसका नाम याद रखें, हरूफ जर। और मैं आपको जर बता के रहा था कि मीनिंग नहीं अन, है सर? जी, मीनिंग मीनिंग नहीं है इसके कोई? हरूफ जर के मीनिंग है वो हरूफ जो जर में ले जाए, हालते जर में ले जाए। अब हालते जर क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो पूरा टॉपिक है। ठीक है, स्टेट्स क्या ओके होती हैं या हालते क्या होती ठीक। हैं? आप किस डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं? आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं? नहीं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, अच्छा फिर नहीं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते तो मैं आपको स्टेट्स ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ रही थी। बहरहाल मैं डी ट्रैक हो गया, सॉरी। हम बात कर रहे थे कि मिन और अन जो है इसका इस्तेमाल अहले ज़बान डिसाइड करते हैं कि किसके साथ आना है। जैसे कि आपने वो दुआ देखी जो हम पढ़ते हैं सुबह शाम की दुआ में, आफियत की दुआ, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? अल्लाहुम्मा महफिज़नी मिन बैनी यदैया, डायरेक्शन वाले सबक में हमने की थी, मेरे सामने से, व मिन खल्फी और मेरे पीछे से। अब व मिन यमीनी और मिन शिमाली नहीं है, वअन यमीनी वअन शिमाल। अब यमीन और शिमाल के साथ अन आता है हमेशा, और बैना यदैया खल्फा के साथ मिन आता है। तो ये किसने डिसाइड किया? अहले ज़ुबान ने डिसाइड किया। अगली मिसाल देखें, वाइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, और जब सवाल करें आपसे इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, बाज़ औक़ात बारे में भी आ जाता है। अब यहाँ पर मेरे से नहीं हो सकता, इसका तर्जुमा मेरे बारे में होगा, फइन्नी करीबुन, बस बेशक मैं करीब हूँ। और वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, ये बड़ी मशहूर आयत है, सूरह बकरा की आखिरी आयत अल्फाज हैं। वाफ़ु अन्ना, और दरगुजर फरमा, अन्ना हमारे से। और आपने लैलतुल कदर के लिए जो एक वजीफा हम आमतौर पे करते हैं या एक कलिमात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये आता है ना आपको, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह आप माफ करने वाले हैं, आपको माफ करना पसंद है। फ़अफ़ु अन्नी, बस दरगुजर फरमा, अन्नी मेरे से। और यहाँ पर क्या आ रहा है? फ़अफ़ु अन्ना, और दरगुजर फरमा हमारे से, वग़फ़िर लना, और बख्श दे हमारे लिए, यानी कि हमें बख्श दे, वरहमना, और रहम फरमा हम पर। ठीक है जी, समझ आ रही है यहाँ तक? कोई मुश्किल तो नहीं है? जी नहीं, मुश्किल नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद मिसालें देख लेते हैं हम बारी बारी। इला
इला का मतलब है तरफ, अभी आपने इसकी मशक की है। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक तेरे रब की तरफ लौटना है। और बगैर, देखिए बगैर ज़मीर के भी ला इस्तेमाल होता है और ज़मीर के साथ भी हो सकता है। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, बेशक हमने भेजा इलैकुम, आप सबकी तरफ। अब देखिए इसी एक आयत के अंदर इलैकुम भी आ रहा है और अलैकुम भी आ रहा है। आप सबकी तरफ रसूलन, एक रसूल, शाहिदन गवाह, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, या आप सबके ऊपर हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा जो तुम्हारे ऊपर क्या है, गवाह है। कुल्लुन इलैना राजिऊन, कुल्लुन आपने पढ़ा, कुल्लुन बादुन, कुल्लुन हर एक को या सब को, इलैना हमारी तरफ, राजिऊन ये कुल्लुन सब, इलैना हमारी तरफ, राजिऊन लौटने वाले। इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। अला की मिसालें देख लें कुछ कुरान करीम से। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, या इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये बहुत मशहूर आयत है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, पूरी तरह से कुदरत रखने वाला। वअलल्लाहि फलितवक्कल मुमिनून, और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले मोमिनीन को चाहिए कि वो क्या करें, तवक्कुल करें, भरोसा करें। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये भी मशहूर आयत है। और नहीं कोई खौफ अलैहिम, ऊपर उनके, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन। अला की अलैहिम की मिसाल तो मैंने आपको बताया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम से आप याद रख सकते हैं। अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैया, और ये कि मैं शुक्र करूं तेरी नेमत का जो तूने इनाम की, अलैया मेरे पर। फी की मिसालें कोई देख दुआ लें। भी ना सर बोलिए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अलैका अलैका तवक्कलना व जी अलैका अल्लाहुम्मा अलैका, जी 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 बिल्कुल, बहुत खूब। इसी तरह हम कहते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, घर से निकलते वक्त। और बिल्कुल वो अल्लाह रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, आप इसकी बात कर रही हैं। तो जी जी अलैका तवक्कलना, हम आप पर तवक्कुल करते हैं, और इलैका अनबना, हम आप ही की तरफ रुजू करते हैं या जी जी करते इनाबत हैं। करते हैं। वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ मैंने आपको बताया, आप इससे याद रख सकते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास से आप याद रख सकते हैं, जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में। वल मुहाजिरीन, और हिजरत करने वाले, फी सबीलिल्लाह में रास्ता अल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, वो किताब नहीं कोई शक उसमें। अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, तो फीही और फीहा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने जिक्र किया। और आपको अब हम ये इसमें सारी एग्जांपल्स आपके सामने आ गई, और वक्त चूंकि इसमें ज्यादा रिक्वायर्ड था इसलिए हमने इसको डायरेक्टली जो है वो देख लिया है। अच्छा, आपको याद होगा इसम की मैंने आपको अलामत बताई थी पहले या नहीं, कुछ याद है? इसम की अलामत पे हमने बात की थी किसी किसी लेक्चर में? नो सर। नहीं बात की। इसम, फेल और हर्फ याद है आपको? 3 टाइप्स होती हैं अल्फाज की, ये तो हम जी 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 दोहराते जी रहते हैं। ठीक है, चलें। ये कुछ अलामात हैं इसम की, ये एक मतलब एक एडिशनल आप कह लें कि हमारा एक इसमें इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो अगर आप पूरी तरह ना भी याद रखें तो खैर है। जो कि स्लाइड्स में आ गई है तो आप पॉसिबल है कि आपको क्विज में भी आ जाए, इसलिए आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसम की अलामात जो है वो कैसे, हम इस अलामत वो होती है जिससे हम किसी चीज को पहचानते हैं। मिसाल के तौर पे बुखार जो है वो एक अलामत है, इस बात की अलामत है कि जिस्म में कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई मसला है जिसकी वजह से बुखार चढ़ रहा है, टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। इसी तरह कहीं से धुआं उठ रहा है तो वो इस बात की अलामत है कि कहीं आग लगी हुई है। तो इसम जो है उसकी कुछ अलामतें हैं जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये इसम है, कि ये शॉर्ट शॉर्ट इसम है, ये फेल या हर्फ नहीं हो सकता। एक अलामत जो है वो बहुत ऑब्वियस है, वो ये कि शुरू में अलिफ लाम होता है और या फिर आखिर में तनवीन होती है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको बताया, बहरहाल जी सर, ये अब मैंने याद आ जी गया बताया। ये वाला जी तो अब याद आ गया पढ़ाया हुआ जी। पहले, जी पढ़ाया हुआ जी ये था। देख के पढ़ाया याद है आ और गया। मैंने इसमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज किया कि ये अलिफ लाम और तनवीन जी जो है जी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि या शुरू में अलिफ लाम होगी या आखिर में तनवीन। जैसे अल किताब या किताबुन, अल किताबुन कभी नहीं हो सकता, या अल किताबु होगा या किताबुन होगा। तो कोई भी लफ्ज आप कुरान करीम खोल लें, कोई भी लफ्ज जिसके शुरू में अलिफ लाम है या जिसके आखिर में तनवीन है, डबल हरकत है, वो हमेशा क्या होगा बताइए, इसम। अल किताबा या किताबन, अल किताबी या किताबिन, यानी कि पेश हो, जबर हो, जेर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने देखना है शुरू में अलिफ लाम है और आखिर में तनवीन है, तो वो क्या होगा, वो इसम होगा हमेशा। इसी तरह तस्निया में चूंकि तनवीन नहीं आती, अल बहरानी, अल उख्तैनी, या अल काफिरून, या अल मुमिनून, या अल मुमिनीन, या अल काफिरीन, इस तरह से अगर है तो वो हमेशा क्या होंगे, वो नाउन्स होंगे, इसम होंगे, ना वो फेल हो सकते हैं ना वो हर्फ। अब एक और अलामत जो है वो अब आपकी आपने उसमें ऐड कर ली,
وہ کیا ہے کہ حرف جر آپ نے سیکھنی ہے. حروف جر, حروف جر جو ہے الکافرون المسلمین المؤمنات بھی سیدھا پتا, اس سے پہلے حرف جر, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرف جر کے بعد جو ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا, اسم, یا اسم سے پہلے حرف جر ہوتا ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے, اسم آتا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا. حرف جر کے بعد کبھی کوئی اور حرف نہیں آتا, اور حرف جر کے بعد کبھی کوئی فعل نہیں آتا. بسم اللہ ہی اس کی مثال ہے, بسم اللہ دیکھ لیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم جو ہے, لفظ اسم, یہ کیا ہے, یہ اسم ہے, خود بھی لفظ اسم ہے اور یہ ہے بھی اسم. فی کتاب اللہ ہی, کتاب جو ہے وہ ایک اسم ہے. فی دین اللہ ہی, دین ایک اسم ہے. للکافرین, ابھی آپ نے دیکھا کافرین جو ہے وہ ایک اسم ہے, اس کا مطلب ہے. للمؤمنین, اور کیا ایک بالحقی, حق جو ہے وہ اسم ہے, اس میں الف لام بھی آ رہا ہے, لیکن یہ جی من الجنتی والناس, آخر الجنتی میں دونوں علامتیں آ گئی. الجنہ میں الف لام بھی آ گیا اور شروع میں حرف جر بھی ہے, تو یہ اسم. حرف جر کے بعد کبھی بھی فعل نہیں آتا. اس لیے اگر آپ کو کسی فعل سے پہلے لی لکھا نظر آئے تو وہ حرف جر نہیں. آپ سے ویسے کوشچن کیا تھا کسی نے آخر میں کہ ہمیشہ یہ لی ہی ہوگا کسی ناؤن سے پہلے, لا تو نہیں ہو سکتا. وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے کل کوشچن کیا تھا؟ بہرحال اگر آپ کو کسی فعل سے پہلے لی لکھا نظر آ رہا ہے, صرف لی کی بات ہو رہی ہے, اسپیسیفک ٹو لی, تو وہ حرف جر نہیں ہوگا, وہ کوئی اور لی. لی کے بعد ہمیشہ کیا ہونا چاہیے, لی حرف جر کے بعد ہمیشہ کیا ہونا چاہیے, بتائیے کیا ہونا چاہیے, اسم فعل یا حرف؟ اسم ہونا چاہیے. تو اب یہ دو علامات آپ نے یاد رکھنی ہے, یا شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین ہو, یا اس سے پہلے حرف جر ہو, تو وہ ہمیشہ اسم ہوگا. اشاروں کے ذریعے آپ نے مشق کر لی ہے, بول چال کے ذریعے اس مشق کو صرف دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. یہ ہم نے دیکھا تھا, یہ ہم پہلے بھی خالی کر چکے ہیں, لیکن بہرحال این ابو کا مثال کے طور پہ آپ سے پوچھتا ہوں, ابراہیم آپ سے پوچھتا ہوں, این ابو کا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ آئینہ کا مطلب کیا ہے؟ آئینہ ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے, پہلے آپ نے نہیں پڑھا. آئینہ کا مطلب کیا ہے, کہاں, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ویئر. جیسے آئینہ انت, اگر میں آپ سے کہوں آئینہ انت, ابراہیم آئینہ انت, آپ کدھر, ہاں ویئر آر یو, آئینہ انت, تو آپ بتائیے کہ میں مسجد میں ہوں, لیٹس سپوز آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں مسجد میں کے لیے کیا کہیں گے؟ انا, اشارہ دیکھیے, انا, اور میں کے لیے کیا پوزیشن ہے؟ انا من نہیں, فی المسجد, نہیں, فی, میں انا کے لیے فی کیا ہے؟ مسجد, انا فی ٹھیک, المسجد, انا فی المسجد, یا انا فی المسجدی, میں مسجد میں. ٹھیک ہے, فی المسجدی کیوں کہیں گے, فی المسجدہ یا مسجدو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ابراہیم یہ بتا سکتے ہیں. حروف جر کی وجہ سے, حروف جر کی وجہ سے. حرف جر کیا کہتا ہے, کیا ریکوائر کرتا ہے کہ زیر آئے آخر, یا اگر جمع ہے تو وہ دوسری والی شکل ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے, تو شکل کون سی آنی چاہیے؟ دوسری والی, اینا والی, یا آئین, ہاں یا نون والی شکل آنی چاہیے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اسی طرح میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ یا نون کس نے بولا؟ آپ بتائیے, اینا امو کی, اینا امو کی یا مبارکہ, سر دوبارہ بولے. اینا امو کی, اینا 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 امو کی. آپ سے میں کیا پوچھ رہا ہوں, سوال بتائیے, سوال میں نے کیا پوچھا آپ سے, اینا امو کی, آپ کی امی کہاں ہے؟ آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ وہ گھر میں ہے. گھر کو کہتے ہیں البیت, ٹھیک ہے, وہ ایک مؤنث کہنا آپ نے, وہ ایک مؤنث گھر میں. اینا امو کی, آئینہ ہاں, نہیں آئینہ نہیں بولنا آپ نے, آئینہ تو سوال کے لیے نا, جواب میں آئینہ نہیں آئے گا, کہاں سوال میں آتا. آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہ ایک مؤنث, پہلے وہ ایک مؤنث کے لیے کیا کہیں گی؟ ہاں بولیں گے. نہیں, وہ تو اس ایک مؤنث کا ہوتا ہے نا. یہ ہوا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ہوا وہ ایک مذکر, اور ہما نہیں, ہیا, ہیا کیا بنے گی, ہیا. اور میں کے لیے کیا ہوگا؟ میں کے لیے کیا ہوگا؟ پریپوزیشن حرف جر بتائیے, حرف جر کون سا پڑا جس کا مطلب میں ہوتا ہے؟ فی. اور بیت کے لیے گھر کے, بیتا نہیں, بیتی نہیں, فیا نہیں ہوگا. دیکھیے فیا ہوتا تو میرے میں ہو جاتا نا. آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہ ایک مؤنث یعنی میری امی, فی میں البیتی گھر. سر کنفیوز ہو گئی ہوں مجھے. یہ یہاں سلائڈ دیکھ لیجیے, میں سلائڈ آپ کو دکھا رہا ہوں. ہیا فی البیت, اینا امو کی. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں امو کی, اگر میں ابراہیم سے کہوں گا تو میں کہوں گا اینا امو کا.
आईना उम्मु की आपने कहा हिया फिल बैती, वो घर में। आईना अबू की आपने कहा हुआ फिल मस्जिद, कि वालिद साहब आप मुज़क्कर हैं तो आप हुआ इस्तेमाल करेंगी। आईना अखू की, गुलाम फातिमा आप बताइए, आईना अखू की। अखू की समझ नहीं आप? अखू हुआ की का मतलब क्या? हुआ जी जी पता है मुझे। जी जी हुआ माशाल्लाह फी बताइए। कब्री। जी, अच्छा आप कब्र से मुराद कब्र है? कब्र कब्र यानी वो अब फौत वफात हो पा चुकी चुके हैं वो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो फिल कब्री, आप फिल कब्री कहेंगे, अलिफ लाम लगा दें साथ में। बहरहाल क्यों लगाना है इसकी भी रीजन हम बता सकते हैं। जी आप किसी और से सवाल करते हैं। फरा आपसे पूछते हैं, आईना उख्तुकी, आईना उख्तुकी। या हम्म फी हिया, या फी घर ही कहते हैं आप, घर कह सकती हैं आप, कोई बात नहीं। घर में क्या कहेंगी? बैत लेकिन हर्फ जर तो इस्तेमाल करें ना। हिया या फी फिल बैत बैती, बैती हाँ, हिया फिल बैती। बैता या बैतू नहीं कह सकते क्योंकि हर्फ जर है। ठीक है जी। तो जी ये आपने देखा इसका कुछ आइन अल कलम मिसाल अब अला का इस्तेमाल करना है, या मैंने आपसे कहा कि असतहु छत को कहते हैं, या अल जबल आप इस्तेमाल कर लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। आइन अखू का तो आपने कहा हुआ अल सतही, वो छत पर है, या हुआ अल जबल, वो पहाड़ के ऊपर है। आइन अल कलम, कलम कहाँ है? आप कहना चाहते हैं कलम किताब के ऊपर है, तो अल कलम अलल किताब, ये कलम मेज के ऊपर है, अल कलम अलल मकतबी। तो ये डिफरेंट वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, क्योंकि हमारा फोकस बोलचाल के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ हम हरूफ जर के इस्तेमाल के लिए इस तरह के जुमले देख रहे हैं। और आखिर में आप ये देख लीजिए कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक में हरूफ जर सीखे हैं जो कुरान करीम में नाकाबिल शुमार मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि बी और ली को अगर काउंट कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। और ये कुछ मिसालें हैं जो कि हमारी हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। वैसे नमाज के कलिमात से हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इसमें से कुछ का तर्जुमा आप कर पाएंगे, कुछ का नहीं। फवाइलुल लिल मुसल्लीन अभी हमने देखा है या नहीं देखा गालिबा। अनअमता अलैहिम, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, भी आ गया। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तीसरे पारे की सूरतें हैं या नमाज के कलिमात। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, फी आ गया। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, सूरह बकरा की आयत है, व उनज़िला मिन क़ब्लिक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सूरह तब्बत के दा की आयत है। मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो खैर ये दिखाने का मकसद ये है कि बहुत कॉमन इसका यूजेज है। और अब आपने ज़मीर मुत्तसिल भी पढ़ लिए हैं, हुरूफ जर भी पढ़ लिए हैं। अगले सबक में हमने 6 मजीद हरूफ पढ़ने हैं, उनका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा है। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपका ये एक जिसे कहना चाहिए एक हमारा सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा हमारे इस कोर्स का, जिसमें कुछ हरूफ आपने बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग सीखेंगे, अस्मा नाउन्स प्रोनाउंस आपने सीख लिए हैं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है हमारा लेसन नंबर 9, वहां से आप समझे कि एक हमारा वर्ब्स वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कमिंग अट्रैक्शन है जो मैंने आपको दे दी है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी सर जैसे इंग्लिश में प्रेपोजिशंस काफी ज्यादा होते हैं, इसी तरह अरेबिक में भी ज्यादा होते हैं जी बिल्कुल। हरूफ या बस जर टोटल 17 है। हरूफ जर असल में 17 है। आसानी के लिए या उसकी फ्रीक्वेंसी को सामने रखते हुए हमने सिर्फ 7 पढ़े, और उन 17 में से कुछ ऐसे हैं जो कुरान में इस्तेमाल नहीं होते। तो 3 और हरफ जर हैं, उनका जिक्र इंशाल्लाह मैं इशारा कर दूंगा अगले लेसन के अंदर, और उसको हम बस सिर्फ एक दफा आप अपने ताकि नॉलेज के अंदर आप लें। वरना जब इसको पढ़ाया जाता है तो इसमें बकायदा शेर याद कराया जाता है, आपने वो याद करा दिया। बाओ ताओ काफो लामो बाओ मुंजो मुज खला, रुबा हशा मिन अदाफी अन अला हत्ता इला। तो ये एक शेर के अंदर 17 हरूफ जर हैं जो ये दरस निज़ामी वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। तो अगर सारों को सर हम ये भी कवर लिख करना के दिखाइएगा फिर समझ जी जी जाएगा। देखिए तर्जुमा भी हमने बता दें। हमारा मकसद, चूंकि मैंने आपको बताया हमारा ऑब्जेक्टिव में बड़े फोकस्ड है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कुरानी अरबी और कुरान करीम का तर्जुमा। तो अब जैसे इसमें मुंजो है, मुज है, अब ये नहीं इस्तेमाल होते कुरान करीम में, तो हम उसको अभी स्किप कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम बस कम वक्त में ज्यादा कवर करें, थोड़े हरीस हम इस मामले में एक्चुअली। कोई और सवाल? बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरान हकीम। खूब अब इसको अच्छे तरीके से आप अप्लाई करें। आपके पास पूरा वीक है, इसमें इंशाल्लाह कोई क्विज भी आ जाएगा, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।